ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز سے فائر کیے گئے اس برق رفتار میزائل نے طویل فاصلے پر موجود اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یہ میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور ایسی خصوصیات سے لیس ہے جو اسے دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے اور اپنے ہدف کو کامیابی سے تباہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اس منصوبے سے منسلک سائنسدانوں اور انجینئرز کے ہمراہ میزائل فائرنگ کے عمل کا خود مشاہدہ کیا۔ انہوں نے اس کامیاب تجربے کو پاک بحریہ کی تکنیکی برتری اور اعلیٰ عملی مہارت کا ثبوت قرار دیا۔ اس تاریخی کامیابی پر صدر پاکستان، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور تمام سروسز چیفز نے متعلقہ یونٹس اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ شب جدہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس موقع پر گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھولے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، سلام عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ملک و قوم کی ترقی، دنیا بھر میں امن و آشتی کے لیے دعائیں کیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ سعودی عرب روانہ ہوئے۔ دوران شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاعی امور سمیت اہم ایشوز پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات جدہ میں ہوئی۔ وزیر اعظم کے پہنچنے پر شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دفاع، توانائی اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ ملاقات میں غزہ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر گفتگو کی گئی۔ محمد بن سلمان نے امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستانی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے دورہ پاک سعودی عرب تعلقات کے نئے دور کا آغاز قرار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے ایرانی وزیر خارجہ سے تہران میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دیگر ایرانی حکام نے شرکت کی۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی شاندار میزبانی پر اظہار تشکر کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا، یہ ہمارے گہرے عظیم دو طرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایران میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خطے میں امن استحکام کو فروغ دینے کے لیے عزم کیا۔ اور امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے سلسلے میں پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ تہران میں موجود ہے۔ تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ نے دیگر ایرانی حکام کے ہمراہ فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق ایرانی ذرائع نے بتایا، یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوشش جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات کو $3.5 ارب کی رقم کی واپسی کے بعد پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں سعودی عرب کی جانب سے ویلیو ڈیٹ کی مدد میں $2 ارب موصول ہوئے ہیں، جبکہ مزید $3 ارب فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، جو زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو 15 اپریل 2024 کی ویلیو ڈیٹ کے مطابق مملکت سعودی عرب کی وزارت خزانہ کی جانب سے $2 ارب موصول ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کے ہمراہ ملاقات کے موقع پر سعودی عرب نے پاکستان کی زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے کے لیے مجموعی طور پر $3 ارب کی فنانسنگ کی یقین دہانی کروائی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ $5 ارب کی سابقہ ڈپازٹس کو بھی طویل مدت کے لیے رول اوور کرنے کا عندیہ دے دیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان کو رواں ماہ متحدہ عرب امارات کو $3.5 ارب کی ادائیگی کرنا ہے، جو سرکاری زر مبادلہ ذخائر کا تقریباً 18% بنتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سعودی معاونت کے باعث اس ادائیگی سے پیدا ہونے والا دباؤ نمایاں حد تک کم ہو جائے گا۔ خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، پاکستان نے مالی سال 2026 کے لیے بیرونی فائنانسنگ کے انتظامات مکمل کر لیے۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ اورنگزیب نے فچ ریٹنگز کے حکام سے ملاقات کی، جس میں پاکستان کی کریڈٹ پروفائل پر تبادلہ خیال کیا۔
वज़ीर ख़ज़ाना ने फिच की जानिब से पाकिस्तान की बी नेगेटिव रेटिंग बरकरार रखने पर खैर मक़दम और आलमी मालियाती मंडियों में फ़ाल मौजूदगी के अज़म का इजहार किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात पर आलमी इदारों का एतमाद बरकरार है। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान ने माली साल 2026 के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतज़ामात मुकम्मल किए। पांडा बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स, सुकूक के जरिए फंडिंग हिकमत अमली जारी है। कारोबार के हवाले से मजीद खबर शामिल करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी। 100 इंडेक्स आगाज से 1486 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स एक हद अबूर कर गया। इंडेक्स 1,69,805 पर देखा गया। गुज़िश्ता रोज मार्केट 16,08,519 पर बंद हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वैल्यू डेट के मुताबिक सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल होने की खबर के बाद स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के चौथे रोज कारोबारी आगाज तेजी से हुआ और मार्केट में 1486 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका ने खबरदार किया, जो ममालिक ईरान का तेल खरीदेंगे उन्हें पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। वाशिंगटन ने दावा किया, चीन मुमकिन तौर पर ईरान से तेल खरीदारी रोक दे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अगर वो ईरान का तेल खरीद रहे हैं, उनके बैंकों में ईरानी रकूम मौजूद है, तो पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। अमरीका की जानिब से ईरान के समंदरी नाकाबंदी पीर के रोज़ शुरू की गई। जंग 7वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी। चीन इससे कबल ईरान के बरामद किए गए 80% से ज़ायद खरीदता रहा। तवक्को है इस नाकाबंदी के नतीजे में चीनी खरीदार आर्जी तौर पर ईरानी तेल की खरीदारी रोक देंगे। चीन के 2 बैंकों को खत लिखकर मुतनब्बा किया कि अकाउंट्स के जरिए ईरानी रकूम की तरसील साबित हुई तो उन पर पाबंदियां आयद की जा सकती। पर ईरानी फौज ने ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में बहरा अहमर से होने वाली तिजारत बंद करवाने की धमकी दे दी। ईरान की फौज ने अमरीकी बहरिया की तरफ से ईरानी समंदर की नाकाबंदी को जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड खातमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया, ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी का जारी रहना जंगबंदी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ईरानी फौज का कहना है, अगर ये नाकाबंदी जारी रखी गई तो ईरान की मुसल्लह अफवाज बहरा अहमर से होने वाली तिजारत की इजाज़त नहीं देगी। फौजी हुकाम के मुताबिक नाकाबंदी जारी रहने की सूरत में खलीज और ओमान से होने वाली हर बरामदात और दरामदात को रुकवा देंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपनाए हुरमज़ में अमरीका की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के मुमकिन ख़तरनाक नताइज से आगाह किया। ईरानी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने इंतबा चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें खलीज आबनाए हुरमज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इन आबनाई रास्तों में अमरीका की मौजूदगी इक़दामात ख़ित्ते की सूरत हाल को पेचीदा बना सकते हैं। बराह रास्त इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने जंग के दौरान ईरानी अवाम की इस्तकामत को सराहा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजिंग सफारती कोशिशों को आगे बढ़ाए और किसी हतमी हल की तरफ पहुँचने में मदद देने के लिए तैयार है। ईरान जंग नहीं चाहता, मगर हमले की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम, कहा ईरान तरक्की के लिए जंग का रास्ता इख्तियार नहीं करेगा और ना ही किसी मुल्क पर हमला किया है। ईरान हमेशा आलमी क़वानीन के दायरे में रहते हुए बराबरी की बुनियाद पर अपने हकूक़ का मुतालबा करता है। ईरान अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए संजीदा है। जंग के दौरान अस्पतालों, पुलों और यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। खलीज फारस की कशीदा सूरत हाल आलमी बहरान को जन्म दे सकती है। ईरान अमरीका जंगबंदी में 2 हफ्तों की तोसी पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे ने दावा किया, जंगबंदी में तोसी का मकसद मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त हासिल करना है। सालिस ममालिक मसाइल के हल के लिए तकनीकी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन मसाइल में आबनाए हुरमज़ को दोबारा खोलना ईरान की जौहरी अफजूदगी शामिल है। अमरीकी न्यूज़ के मुताबिक अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब हैं। अमरीका ईरान ओहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात मंगल के रोज़ पेशरफ्त हुई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकराती टीम मुसलसल राब्तों में है। हम मुआहदा चाहते हैं, ईरानी हुकूमत के कुछ हिस्से भी इसके ख्वाहां हैं, लेकिन असल चैलेंज है कि पूरी हुकूमत इस मुआहदे पर आमादा हो। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना जॉर्जियो ने पाकिस्तान की इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ की है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना ने वर्ल्ड बैंक और IMF के बहार इजलास 2026 के मौके पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त को सराहा।
सोशल मीडिया पर जारी बयान में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के बायस मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। मजीद कहा, मजबूत मुआशी पॉलिसियों के साथ साथ गहरी साख्ती इस्लाहात का तसलसल मुआशी तरक्की को बरकरार रखने और अवामी फलाह बहबूद बेहतर बनाने के लिए अहम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर ईरान को असलहा फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया, ताहम चीन ने सदर ट्रंप के इल्ज़ामात की तरदीद की। अमरीकी सदर ने कहा, उन्होंने चीनी सदर को ख़त में कहा, खबरें हैं कि चीन ईरान को हथियार फराहम कराए, चीन ऐसा ना करे। ट्रंप ने कहा, चीनी सदर ने खूबसूरत जवाबी ख़त लिखा जिसमें चीनी सदर ने बताया चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। पिछले हफ्ते इंटेलिजेंस ने खबर दी कि चीन चंद हफ्तों में ईरान को नया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने वाला है। कराची में सिंध हाई कोर्ट में अहम मुकदमात की समाअत हुई। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के साहिबजादे ओवाब अलवी के खिलाफ सफरी पाबंदियों के मामले पर अदालत ने DGFIA और दीगर हुकाम को तौहीन अदालत की नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक 7 अप्रैल को अदालती हुकाम के बावजूद उन्हें बैरून मुल्क सफ़र से रोका गया, जबकि अदालत पहले ही फरवरी में उनका नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म दे चुकी थी। दूसरी जानिब गुलशन रूफी स्कीम 3 में प्लॉट्स की अदम फराहमी के खिलाफ केस में सैकड़ों मुतासरीन अदालत पहुंच गए, जहां उन्होंने इंसाफ के लिए दुहाइयां दी। अदालत ने नैब और दीगर इदारों की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए नामजद बिल्डर्स को 21 अप्रैल को तलब कर लिया और नैब की तफ्तीशी अफसर को भी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक 800 से जायद मुतासरीन को ताहाल प्लॉट्स फराहम नहीं किए गए, जबकि बिल्डर्स पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड और फलाही प्लॉट्स पर गैर कानूनी अलॉटमेंट के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। अदालत ने इस हवाले से अपने साबिका अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में के इलेक्ट्रिक के साबिक CEO मोनिस अलवी के खिलाफ खातून को हरासा करने के केस की समाअत हुई, जहां के इलेक्ट्रिक की साबिक अफसर महरीन अजीज खान की गवर्नर सिंध के फैसले के खिलाफ अपील ज़ेर गौर आई। समाअत के दौरान साबिक CEO की जानिब से कोई पेश न हो सका, जिस पर अदालत ने उन्हें दीगर फरीकैन को एक बार फिर नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत 18 मई तक मुलतवी की। दरख्वास्त गुजार के वकील जिब्रान नासिर के मौक़िफ़ इख्तियार किया। सूबाई मोहतसिब ने साबिक CEO को हरासानी का मुर्तकब करार देकर 25 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। ताहम गवर्नर सिंध ने हरासानी की तशरीह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स की। उन्होंने कहा, हम शवाहिद और मनफी वर्क प्लेस माहौल को नजरअंदाज किया, जबकि शिकायत के 1 माह बाद मुलाजमत से बरतरफी को इंतकामी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। गवर्नर सिंध के फैसले में मफादात के टकराव को नजरअंदाज किया। अदालत से हुक्म गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई। कराची में सुल्तानाबाद, मंगू पीर और मोहलिका इलाकों में हब कैनाल नहर की सफाई के बाद भी पानी की फराहमी मुअत्तल रही, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। ज़राए के मुताबिक नहर की सफाई के दौरान पानी की सप्लाई आर्जी तौर पर बंद की गई थी, मगर सफाई मुकम्मल होने के बावजूद कई दिन गुजरने के बाद भी पानी बहाल न हो सका। इलाका मकीनों का कहना है, मुसलसल पानी की बंदिश से घरेलू निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जबकि शदीद गर्मी में पानी की किल्लत ने मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा दिया। शहरियों ने यह भी शिकायत की कि इंतज़ामिया की जानिब से पानी की बहाली के हवाले से कोई वाज़ेह टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा, जबकि दूसरी तरफ टैंकर माफिया महंगे दामों पानी फरोख्त कर रहा है। तहम NTN न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फौरी एक्शन लिया और चंद ही घंटों में मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी बहाल कर दी। पानी की बहाली पर इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने फौरी तौर पर मेयर कराची के इस इक़दाम का शुक्रिया अदा किया। कराची में 3 माह के दौरान गाड़ियों मोटरसाइकिलों की चोरी छीनने जाने के वाक़यात में कमी नहीं आ सकी। 3 माह में 8,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलों से शहरी महरूम। हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब SSP AVLC के साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP AVLC खालिद मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ। साल के इब्तिदाई 3 माह में जो शहर में स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिलों की चोरी और गाड़ियों की चोरी, उसकी रिकवरी के हवाले से हम बात करते हैं। खालिद साहब, ये बताइएगा, साल के इब्तिदाई 3 महीनों में जो CPLC की रिपोर्ट है उसमें इंकशाफ है कि तकरीबन मोटरसाइकिलों की चोरी में इजाफा हुआ है। क्या देख रहे हैं आप, किस तरह की रिकवरियाँ की जा रही हैं AVLC पुलिस की जानिब से? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। पहली बात कि CPLC का और AVLC का डेटा एक ही है। रिकॉर्ड आपको बताएगा कि 2025 और 2026 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2025 में जितना क्राइम था उसके मुकाबले में 2026 में 40% कम हुआ है। रिकवरी भी समझे 70% ऊपर हुई हैं 2025 से
2026 में, मतलब बहुत बड़ा एक फ़र्क आया है और अभी भी आएगा, क्योंकि ये S4 सेफ सिटी और ये जो IT की टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, इससे बड़ा फ़र्क हुआ है। और उसके अलावा हमें अब ये पता चल गया कि हमारी गाड़ी जा कहाँ रही है, ले कौन रहा है और आगे उसका डिस्पोजल क्या हो रहा है। सिर्फ पब्लिक को एक रिक्वेस्ट है कि जो फेक कॉल्स आती है कि जी हमारी आपकी गाड़ी हमारे पास है, आप 2 लाख रुपए ले लें, 3 लाख रुपए दे दें, ये मेहरबानी करें उन कॉल्स को अवॉइड करें, वो झूठी कॉल्स है। उस पर भी हमारा काम चल रहा है, लेकिन मेहरबानी करके अपनी गाड़ियाँ सेफ जगह पे खड़ी करें, जहाँ CCTV कैमरे लगे हुए वहाँ खड़ी करें और अपनी गाड़ियों को डबल लॉक्स लगाएं। कोशिश करें कि उनको जो ट्रैकर है वो लगवाएं ताकि आपकी गाड़ियाँ सेफ हो सके। ये भी बताइएगा कि शहरियों का ये आइकॉन कॉन्सेप्ट है कि मोटरसाइकिलें जो है वो रिकवरी नहीं हो पाती मुमकिन, उनकी बड़ी गाड़ियों में जल्दी हुई, तो इस बारे में ABLC क्या क्या कहना है? मेरे भाई उसमें भी रिकवरी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2025 में जितनी स्नैचिंग और थेफ्ट मोटरसाइकिल की हुई थी उसमें 40% कमी आई है और रिकवरी भी पिछले साल से 40% और ऊपर आया है। तो अब डेटा बताएगा, डेटा हमारे पास है, वो कहेंगे तो हम आपको दे देते हैं। जी बिल्कुल, हमारी बात हुई SSP ABLC खालिद मुस्तफा कुरैशी साहब से। उनका यही कहना था कि साल 2025 के मुकाबले में 2026 में ABLC की जो है कामयाबियाँ और जो जराइम का जो रेशो है वो भी कम हुआ।